میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج اب بات ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی کریں گے, جس کو میں عمران خان کا فین کلب کہتا چلا آ رہا ہوں. اور آج الحمدللہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ عمران خان صاحب کا فین کلب ہے, کیونکہ کوئی اس میں نظم و ضبط جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں مل رہا. کئی دھڑے بن چکے ہیں جماعت کے اندر. کسی کا دائیں کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی آگے دیکھ رہا ہے, کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ اپنی اپنی منزل ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ چودراہٹ وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے پنجاب کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کے اور شیخ وقاص اکرم کے اختلافات جس طریقے سے کھل کر سامنے آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. پہلے کہا گیا کہ جناب عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ مصروف ہیں, اس وجہ سے لاہور کی جو میٹنگ تھی اس میں وہ شریک نہیں ہو سکیں. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ کون سی ایسی مصروفیت تھی جس کام میں مصروف تھی جس کا علم مجھے نہیں ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب کے بھی جو وائس نوٹس ہیں اب وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی خاتون ہے, اس نے سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے وہ بات میڈیا میں دے دی, اور میری بات کو جو ہے وہ یعنی اس کا اینگلنگ ہو گئی ہے, اور یہ تو قابل اعتماد شخص ہی نہیں ہے. یعنی ان کو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف میڈیا کھیلنا چاہتی ہیں. کیا سوشل میڈیا نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے؟ اب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب, یہ سنیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے متعلق کیا خیالات ہیں ان کے. آپ نے میری گفتگو, میرا جو آپ کو میسج تھا, اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے. مطلب دس از آؤٹریجس. آپ اس قسم کی خاتون ہیں کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں. آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی, اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی, اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا, بتایا آپ نے ان کو؟ مطلب دس از آؤٹریجس کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائیں, آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں, اتنی آپ کو وہ چاہیے, اٹینشن چاہیے, اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میڈیا کو. اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں, اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی یا اس سے بعد میں ہوئی تھی. وہ یہی تھی کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایز نہیں ہوتے اور ورکر ہوتا ہے, تو فرسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ صرف ایم این ایز ایم پی ایز کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور پھر اس میسج کے بعد سی سی میٹنگ ہوئی جہاں آپ کی ریکویسٹ کے اوپر چیف منسٹر کو ہم نے کہا کہ وہ واپس جائیں گے جی ٹی روڈ سے. آج آپ نے یہ حرکت کی اور بڑی بری حرکت کی آپ نے. اتنی بندوں کو خواہشیں ہوتی ہیں کہ میڈیا میں اٹھائے اور ہمیں یہ بنائے. سب میڈیا کے اوپر عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے, وی لاگ میں سے عمران خان کو آپ نے باہر نکالنا ہے, سوشل میڈیا میں سے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. دس از ہاؤ یو بیکم پارٹ آف دا پارٹی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی میسج کے لیک ہونے سے, بٹ آئی ایم کمپیلڈ ناؤ کہ اس کے سیاق و سباق اب سب کو بتائے جائیں گے کہ یہ کیا ہوا, کس نے کیا کیا. اب آپ نے یہ سن لیا جی. اب شیخ وقاص اکرم اور عالیہ حمزہ کا یہ معاملہ ہو گیا. دوسری جانب علی مین گنڈا پور صاحب نے جو 90 دن کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, اور جو 5 اگست کی جو کال تھی عمران خان صاحب کی, اس کو جو ہے اس کے اوپر اپنی ایک نئی جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے دی ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے بھی کافی شدت سے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اچھا, احمد نیازی صاحب ہیں. اب میں تو ان کو عمران خان صاحب کا سیکیورٹی گارڈ سمجھتا تھا, لیکن شاید یہ پارٹی میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں. اب یہ بھی ڈفر کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے, اور یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ سنیں. ہمیں تو 700 دن کا حساب چاہیے, تم 100 دن اور دے رہے ہو. ہمیں 300 دن 90 دن نامنظور ہے. ہمیں علیمہ خان نے 5 اگست کا ٹائم دیا ہے. ہم 5 اگست کو ہمیں ٹائم چاہیے. ہم ہر گلی جائیں گے, ہر محلے جائیں گے, ہم ہر شہر جائیں گے, ہر ڈسٹرکٹ جائیں گے. ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک خان ہمیں ٹرک کی ناپتی دکھاؤ. کبھی مذاکرات سے دکھاتے ہو, کبھی 5 تاریخ, کبھی 10 تاریخ, کبھی عید سے پہلے, کبھی عید سے بعد. ہم بس ہو گئی ہماری. اب 2 سال سے ہمارا لیڈر اندر ہے, بہت ہو گیا.
अब हम घर नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होएगा। खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए नहीं कहेगा आपको, वो एक गैरतमंद इंसान है। बिल्कुल 72 साल में कभी उसने हमारा सर शर्म से नहीं झुकने दिया। हम लोग आपको बता रहे हैं, हम लोग इनको बता रहे हैं फैसला जो करते हैं कि तुम लोग इंतजार ना करो, वक्त तो हमें टाइम बताओ, और नहीं दोगे तो फिर हम देंगे तुम्हें वक्त। और जब हम वक्त देंगे तो सब पे भारी होगा फिर वो। आप सब ने तैयार रहना है। एहतजाज हमारा हक है, हमारा हक है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। देखिए, अब अहमद न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये 90 दिन की जो चीज़ है ये नामंजूर है, और उन्होंने कहा जी 5 अगस्त की कॉल पर कायम है, जो कि अलीमा खान साहिबा ने अनाउंस की हुई है। अब अलीमा खान साहिबा तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन अहमद न्याजी साहब ने अपनी अलाइनमेंट की हुई है। ये बात बड़ी वाज़ेह हो रही है कि अहमद न्याजी जो है वो गारंटीड अलीमा खान के कैंप का हिस्सा है, और वो मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि अलीमा खान साहिबा ने पार्टी पर ख़ासा अपना असर रसूख रख लिया है, कायम कर ली है, तो ये भी उनके ज़ेरे असर हैं। अहमद न्याजी इज़ श्योरली अलीमा खान्स बॉय। दूसरी तरफ जनाब आलिया हमज़ा साहिबा भी, वैसे तो उनका अलीमा खान साहिबा से खासे इख्तलाफात हैं, लेकिन आलिया हमज़ा साहिबा ने भी अपने लोगों से हल्फ लेने शुरू कर दिए हैं। वो ये कह रही हैं कि अब वक्त आ गया है कि हमें निकलना होगा, और जो नहीं निकल सकते उनको मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि आप जो है वो साइड पर हो जाएं। ये क्लिप सुने आप। लेकिन ये वो वक्त आ गया है कि आपको बाहर निकलना, आपका लीडर आपको वहां से बैठ कर ये कॉल करे, हमें सबका एहसास है, लेकिन हम हाथ जोड़ के सबके आगे ये कहेंगे कि जो नहीं कर सकता हम आपसे हाथ जोड़ के कहें आप अगलों को। अब देखें जी, ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस इनके सामने आ रही हैं। पहले अपने अलीमीन गंडापुर के बयानात सुने हुए हैं, उसके बाद अब शेख वकास अकरम की आलिया हमज़ा से मुतल्लिक़ गुफ्तगू सुन लें, फिर आलिया हमज़ा साहिबा जो जवाब दे रही हैं वो बात सुन लें। तो ये शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, और अब नई खबर सुनने में मिल रही है। नई खबर सुनने में ये आ रही है, तलात है, अब सोशल मीडिया की खबर है कि मतलब 100% ऑथेंटिक तो है नहीं। ये कहा जा रहा है जी कि किसी का भी इस वक्त जो है वो टिकट कन्फर्म नहीं है सवाए मिर्ज़ा आफरीदी साहब के। वो कम अज़ कम जो है उनका टिकट कंफर्म हो चुका है। इस वक्त तक मुराद सईद तक का जो है वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ सेनेट का। तो अब देख लें कि पैसे की कितनी ताकत है। अब ये देख लें कि वैसे तो मिस्टर क्लीन इमरान अहमद न्याजी साहब, वैसे तो वो कहते हैं जी कि मैं पैसा, मुझे कौन सी भूख है, मुझे पैसा जो है मैंने ज़िंदगी में बड़ा ग्लैमर देख चुका हूँ, सब चीज़ें देख चुका हूँ, लेकिन हमेशा पैसे वाले बंदे की तरफ ये मरगूब हो जाते हैं। पहले मलिक रियाज साहब से जो है वो हीरे शीरे लेते रहे, और उनसे अलकादर वाले जो है वो ज़मीन भी ली, उस पर यूनिवर्सिटी भी जो है वो अपनी बनवाई। फिर इसके अलावा आप ये देख लें कि जो थी क्या नाम है फरा घोगी, उसके नाम पर भी उसको बेसिकली अपना बेनामीदार जो है वो रखा हुआ था उन्होंने, और वो भी तकरीबन 200 कनाल जगह मोड़ा मुरादू इमरान खान साहब ने अपने घर के पास जगह जो है वो इमरान खान जो मलिक रियाज साहब से ली। तो मतलब बड़े साफ हैं, मतलब तभी तो रियाला के चांसलर बने हुए हैं ना आज। 190 मिलियन पाउंड केस में जो मैं बात करता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, ये सच्चा केस है, तो वो बात भी साबित हो रही है। एक चीज़ ये साबित हुई कि कोई शख्स किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है। फैसला साजी का फुकदान आ चुका है पार्टी के अंदर। टिकट की तकसीम के ऊपर भी ये जो है वो दस्तों गिरेबान हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। अब मुराद सईद का टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो मिर्ज़ा आफरीदी साहब के बारे में हर बंदा ही कह रहा है कि उनको जो है वो टिकट जो है उनका कंफर्म है। अब अगली बात देखें जी कि अब आगे क्या ये शेप अप होता है। ये 5 अगस्त को इनका एहतजाज होगा या नहीं होगा, मैं ख़ुद कंफ्यूज हूँ। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अब ये एहतजाज कर सकते हैं। ये 90 दिन बाद भी एहतजाज करने की इनमें कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से आपसी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, कोई किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं है, हर कोई चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। जब सब बंदा चौधरी बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो ज़िल्लत और रसवाई आप अपने नाम करते हैं, क्योंकि नाइतफाकी जो है वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देती। आप फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुने तो वो बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये जितनी क़यादत जो उठ कर लाहौर गई थी, वहाँ से जाकर कोट लखपत जेल का चक्कर लगा लेते, या इस मीटिंग के अंदर जो असीरान थे इनकी फैमिलीज़ को बुला लेते, उनकी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती। तो कितनी सेंसिबल और मैच्योर बात की
फैसल चौधरी ने, लेकिन मैच्योरिटी जो है वो किसी सूरत जो है वो पसंद नहीं की जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये सियासी जमात थोड़ी है, ये तो फ़ैन क्लब है इमरान खान का, या जो गडियाला के चांसलर हैं उनका फ़ैन क्लब है। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं जी। मौलाना फजल रहमान साहब के छोटे भाई मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने एक तो अली मीन गंडापुर का जो चैलेंज है वो कबूल कर लिया है। अली मीन साहब ने फरमाया था कि जी मेरा भाई इस्तीफ़ा देता है और आप इलेक्शन लड़ लें। मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब फरमाते हैं कि जनाब इस्तीफ़ा दें, मैं भी मुफ्ती महमूद का आपने जिक्र किया था गुफ्तगू में, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो कहते हैं कि जी मौलाना फजल रहमान तो वो हस्ती हैं जिन्होंने आपके लीडर को, यानी अली मीन के लीडर को इक़्तिदार से उठा के बाहर फेंका। और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजल रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजल रहमान वो मौलाना फजल रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक़्तिदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजल रहमान आपके किस साथ मुकाबला नहीं करेगा। आप कहते हो कि मुकाबले, मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आ जाओ, अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। तो मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब जो हैं वो खासे जो है वो अब नज़र आए हैं, कहते हैं गुस्से में, जलाल में नज़र आए हैं, और बज़ाहिर अली मीन साहब ने चैलेंज देकर फंस चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अली मीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं वो इस्तीफ़ा देंगे और उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन होगा। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो खाली जोशे ख़ताबत में, जज्बात में बहते हुए उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी, ये चैलेंज कर दिया था। ये बात वो करनी चाहिए जिसके ऊपर सियासतदान जो है वो कायम रह सके, लेकिन कोई बुरा नहीं मनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कल्चर है उसमें उनके बानी चेयरमैन वो जो है वो किंग ऑफ यूटर्न उनको कहा जाता है। वो तो कहते हैं कि जी यूटर्न लेना ही सियासत है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अली मीन गंडापुर साहब भी इसके ऊपर सियासत ही करेंगे, वो किसी सूरत जो है वो तसादम की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ज़ियाउर रहमान साहब ने एक बात और भी की जी, काश मुझे, मेरी हसरत है कि वो वीडियोस रिलीज हो जाएं कि जिन वीडियोस में आप उनके पैरों पर हाथ रखकर आंसुओं से रोते हुए उनसे माफिया, गिड़गिड़ा कर माफिया मांग रहे थे। और आप सिर्फ माफिया नहीं मांग रहे थे, आप अपने लीडरशिप को, अपने लीडर इमरान खान को गालियां दे रहे थे। आप अपने लीडर की वाइफ बुशरा बेगम को गालियां दे रहे थे, आप उनकी बहन अलीमा खान को गालियां दे रहे थे, आप उनके खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर रहे थे, और आप उनके पैरों पर हाथ रखकर रोते हुए उनको कह रहे थे कि मैं पीटीआई के को तकसीम करूंगा, मैं इनके अंदर दरारें डालूंगा, मैं इनकी तमाम स्ट्रेटजीज को नाकाम करूंगा, मैं इनकी तहरीक को नाकाम करूंगा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक को आपने नाकाम किया। अब ज़ियाउर रहमान साहब की जो है ना ये आप गुफ्तगू आपने सुनी है, उसमें ज़ियाउर रहमान साहब कह रहे हैं जी कि आप जहाँ पर गए थे वहाँ पर उनके पाँव में बैठे हुए थे, और फिर आप जो है वो गालियाँ निकाल रहे थे इमरान खान साहब को, आप गालियाँ निकाल रहे थे उनकी हमशीरा को, आप गाली निकाल रहे थे उनकी अहलिया को, उनको बुरा भला कह रहे थे, और आपने वहाँ पर ये वादा किया था कि मैं पार्टी में धड़ेबंदी कर दूंगा, मैं पार्टी को कमज़ोर कर दूंगा, और आप अपने उसी काम के ऊपर जो है वो कायम व दायम हैं। तो बेसिकली जब आप किसी पर जो है उधार चढ़ाओगे तो अगले जो है वो सूद समेत जो है वो चुकाने का भी जो है वो हक रखते हैं, और यही मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ने किया है। आज के यही अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल मज़ीद किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।